Bhimrao Ramji Ambedkar, the maker of modern India, popularly known as Baba Sahib Ambedkar, was an Indian jurist, economist, politician, and social reformer. He campaigned against social discrimination towards the Dalits and also supported the rights of women and laborers. He was independent India's first law and justice minister, the architect of the Constitution of India, and a founding father of the Republic of India. He was indeed one of the great men of the 20th century India and will be remembered for his great contribution to the society. He was born on 14th April 1891 in Mhow in Central Provinces, currently Madhya Pradesh, to Ramji Malauji Sakpal, his father, and Bhimabai Murbatkar Sakpal, his mother. Bhimrao was the youngest amongst 14 siblings in the family and the only one to pass the test for higher education. In his early career, he was an economist, professor, and lawyer. His later life was marked by his political activities. He became involved in campaigning and negotiations for India's independence, publishing journals, advocating political rights and social freedom for Dalits, and contributing significantly to the establishment of the state of India. Celebrating the completion of 70 years of the Constitution of India, we, the students of SR International School, Surat, have taken a small initiative to remember and pay our respect to the architect of our Constitution, Dr. B.R. Ambedkar. As we all know, he was born in the Mahar caste that was considered as low caste in the caste-divided Indian society. His childhood days were not easy and smooth for him. Any other common man would have accepted the disrespect and humiliation faced by the Dalits as the destiny, but not Ambedkar. He gave up what could have been a good career for him after completing his education and decided to fight for the rights of the Dalit. His efforts to eradicate social evils like untouchability and social restrictions were remarkable. He, throughout his life, fought for the rights of the Dalits and other socially backward classes. Here are some instances from the Ambedkar's life enacted by the students of EIS. अंबेडकर के पिता फौज में थे। उनके पिता के सेवानिवृत्ति के पश्चात वे सातारा में रहने चले गए, परंतु जगह बदलने से पाठशाला में अंबेडकर की कठिनाइयां कम नहीं हुई। आप सब देख रहे हैं ना, वहां कक्षा में दूर एक बच्चा बैठा है। बच्चों, आज आपने अपने राष्ट्रीय झंडे के बारे में पढ़ा। आपने पढ़ा कैसे हर देश का एक राष्ट्रीय झंडा होता है, वह उस देश का प्रतीक होता है। आपको अपने गृह कार्य में अपने राष्ट्रीय झंडे का चित्र बनाना है। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। तुम जानते हो, यह भीमराव महर जाति का है। माँ कहती है इन लोगों के साथ उठना बैठना ठीक नहीं है। यह अछूत है। इनके हाथ से तो पानी पीना भी पाप है। यह कक्षा के बाहर ही ठीक है। हाँ। माँ कहती है कि यही हमारा जीवन है, इसको हमें अपना लेना चाहिए। इसका विरोध करके हमारी कठिनाइयाँ बढ़ जाएगी। सदियों से समाज में हमारी यही स्थिति है। अब यह हमारे जीवन का हिस्सा हो गया है, इसको हम बदल नहीं सकते। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ माँ। देखना माँ, मैं बड़ा होकर हमारी तरह लाखों लोगों के हक के लिए लड़ूंगा और उनके जीवन में अवश्य सुधार लाऊंगा। समय बीता पर अंबेडकर और अन्य पिछड़ी जाति के लोगों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। अंबेडकर भाग्यशाली थे कि दलित होने के बावजूद वे अपनी पढ़ाई पूरी कर पाए।
1960 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और मुंबई विश्वविद्यालय के एल्फिस्टोन कॉलेज में दाखिला ले लिया। वह महर जाति के पहले विद्यार्थी थे जिन्हें पढ़ाई करने का मौका मिला था, परंतु एक अच्छा विद्यार्थी होने पर भी उनके अध्यापकों ने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। अक्सर उन्हें कक्षा के बाहर बैठकर ही पढ़ना पड़ता था। वडोदरा के राजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें 25 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति पर अमेरिका 1913 में पढ़ने भेजा था। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। उसके पश्चात 1916 में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया और अपनी दूसरी डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। निरंतर संघर्ष के पश्चात उन्हें मुंबई में प्रोफेसर की नौकरी मिली। उनके विद्यार्थी उनसे बहुत खुश थे, परंतु दूसरे शिक्षक उनके साथ दुर्व्यवहार करते, एक ही घड़े से पानी तक न पीने देते। छुआछूत के प्रति समाज की विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता था। अंबेडकर कहते थे, गरीबी, शोषण, गुलामी इन सब का एक ही कारण है, शिक्षण का अभाव। विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके वे अपने देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ना चाहते थे और पिछले वर्गों को बराबरी का दर्जा दिलाकर उन्हें कानूनी तौर पर सक्षम बनाना चाहते थे। जनवरी में मुंबई राज्य ने कानून पास किया जिसके तहत पिछड़ी जाति यानी दलितों को सरकारी स्थल जैसे मंदिर, सरकारी टैंक पर पूरा हक दिया जाएगा, परंतु सवर्ण हिंदू यह होने नहीं दे रहे। हम 14 टैंक केवल पानी लेने नहीं परंतु दलितों के हक के लिए लड़ने जा रहे हैं। मेरे दलित भाइयों और बहनों, अब समय आ गया है कि हम पुराने रीति रिवाज तोड़कर आगे बढ़े। हमारी बहनें भी ऊंचे वर्ग की बहनों की तरह साड़ियां पहनेंगी। हम बराबरी का दर्जा लेकर रहेंगे। 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर ने अलग निर्वाचन अर्थात सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की, जिसके द्वारा दलितों को अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनने का अधिकार मिले। गांधी जी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इससे जाति भेद बढ़ेगा, समाप्त नहीं होगा। तत्पश्चात 1932 में पूना पैक्ट आया, जिसके तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित की गई। तो आप ये बात खास तौर पर चाहते हैं कि अछूतों को सरकारी नौकरियां मिले? जी, निश्चित रूप से। क्यों ऐसा चाहते हैं आप? कानून के अमल के मामले में हमारा अनुभव बहुत ही बुरा है। अधिकतर मामलों में कानून का उपयोग पिछड़ी जाति के लोगों के विरुद्ध हुआ है। मैं मानता हूं कि आप अछूतों की बेहतरी के लिए हमेशा कोशिश में रहे हैं, लेकिन क्या सवर्ण आपकी इस काम में मदद करते हैं? ऊंची जाति के सभी हिंदू नीची जाति के लोगों को गंदा काम करने पर मजबूर करते हैं। वो सोचते हैं कि अछूत अगर ये काम करना छोड़ देंगे तो उनका जीवन स्तर सुधरने लगेगा और वो सवर्णों की हर स्तर पर बराबरी करेंगे। हिंदुस्तान का संविधान अछूतों के साथ सही बर्ताव करे, इसके लिए आपके मुताबिक क्या सही तरीका हो सकता है? सबसे पहली बात तो मैं आपके सामने ये रखनी चाहूंगा, हमारा यह दावा है कि पिछड़ी जाति वालों को हिंदू जाति से अलग रखकर अल्पसंख्यकों की तरह बर्ताव किया जाए। दूसरी बात, पिछड़ी जाति के अल्पसंख्यकों को दूसरे किसी भी अल्पसंख्यक जाति से अधिक राजनीतिक संरक्षण की आवश्यकता है। वो भी इस वजह से क्योंकि अछूत हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ, आर्थिक दृष्टि से गरीब, सामाजिक रूप से गुलाम और यहां तक कि राजनीतिक दृष्टि से कमजोर रहा है और किसी भी अन्य संप्रदाय की तुलना में। इसलिए हमारा दावा है आरक्षण का, और वो भी वयस्क मताधिकार के साथ। और वयस्क मताधिकार ना हो तो फिर हम स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र चाहेंगे, कुछ और ऐसे संरक्षण चाहेंगे जिसमें उनके लिए अच्छी शिक्षा हो और सरकारी नौकरियों में उनका प्रवेश।
Ambedkar, we will remember you for your valuable contribution to the society. You said that the solution to all our problems is education. Education is not that is only found in books, but that which is gained through our actions. He said, I like the religion that teaches us equality, liberty, and fraternity. He had a vision that every member in this country should be treated equal and should have equal rights. He fought for the right of laborers and changed the working hours from 14 to 8 hours a day and introduced other measures like dearness allowance and equal pay for equal work. He had an ocean of knowledge. He urged the Dalits to get education and be a part in the fight for equality and share in governance. Knowledge was his true legacy. He collected more than 50,000 books. His personal library at Rajgriha Hindu Colony, Mumbai is the largest personal library. In 2013, this mansion became a World Heritage Site. The Reserve Bank of India was conceptualized in accordance with the guidelines given in his book, The Problem of the Rupee and Its Solution. He said, life should be great rather than long. We must stand on our feet and fight as best as we can for our rights. Power and prestige will come to you through struggle. Pen was your weapon, your mind your sword. Knowledge was a shield. Your capable hands guided us into the future. No one thus dared to question the cast of the hand that led us into the future. You are a father figure as you made India one giant family.